Assalamu alaikum grade 4. Today we are going to solve exercise number 12 to 15 unit number 5. So exercise number 12 is add these decimal fractions. Here are some decimal fractions and you have to add them. So exercise number 12 is here. First is 0.634 plus 0.211. So write first decimal fraction 0.634. Second is 0.211. So you have to write decimal point under decimal point and then write tenth under tenth, then hundredth under hundredth and थाउजेंथ अंडर थाउजेंथ और यहाँ पे आपने ज़ीरो लिख देना है. ठीक है, आपने डेसिमल पॉइंट को डेसिमल पॉइंट के नीचे ही लिखना है और फिर रिस्पेक्टिव जो उसकी वैल्यूज़ होंगी उनको बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे लिख देना है. बाकी एडिशन सिंपल है, जो बाकी से होल नंबर्स की एडिशन होती है वही डेसिमल फ्रैक्शन की एडिशन होगी. 4 + 1 = 5, 3 + 1 4, 6 + 2 8, डेसिमल पॉइंट एंड देन 0. So answer is 0.845. Number 2 is 7.89. So write decimal point under decimal point and then write values. 3 के नीचे आ 7 के नीचे आ जाएगा 3, then 6 5 sorry there are 2 digits after this decimal point और next number में there are 3 digits. So you have to write 6 5 7 और यहाँ पे जो डिजिट मिसिंग है वहाँ पे आपने ज़ीरो खुद से ऐड कर देना है. देन ऐड 7 + 0 7, 9 + 5 14, 8 + 6 14 + 1 15, 5 + 1 7 + 3 10 एंड 11. ठीक है, आपने सिंपल एडिशन करनी है और डेसिमल पॉइंट को डेसिमल पॉइंट के नीचे ही लिखना है. नंबर थर्ड इज 12.345 and another number is 45.5. So you have to write 45 here, 0.5. Write 2 zeros here. आपने यहाँ पे 2 zeros खुद से लगाने हैं. 5 + 0 5, 4 + 0 4, 3 + 5 8, then decimal point 5 + 2 7, 4 + 1 5. Answer is 57.845. Number fourth is 123.4545. And this is 43.568. So write decimal point under decimal point and write these values after decimal point 5 6 8. This is missing, so we will write 0 here. And first is the numbers before decimal point is 43. तो आपने 43 को ऐसे लिखना है. ये नहीं कि आपने 1 के नीचे 4 और 2 के नीचे 3 लिख दिया तो वो 430 बन जाएगा. आपने 43 को ऐसे ही लिखना है एंड 1 के नीचे आपके 0 आ जाएगा. 5 + 0 5, 8 + 4 12, 6 + 5 11 + 1 12, 2 1 carry over, 5 + 4 9 + 1 10 0 1 carry over, 3 + 3 6 + 1 7, 4 + 2 6 and 1 and write decimal point under decimal point. So answer is 167.0225. Number 5th is also same. इसमें भी आपने पहले 5.1 लिखना है और देखना है कि नेक्स्ट नंबर में डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं. 1 2 3. हियर इज़ ओनली 1 डिजिट, सो यू हैव टू पुट 2 zeros बाय योर सेल्फ एंड हियर आर 2 नंबर्स बिफोर डेसिमल पॉइंट. तो यहाँ भी आपने एक ज़ीरो खुद से पुट करना है. सो दिस इज 62.888. बाकी एडिशन आपने सिंपल करनी है. नंबर 6th इज देयर आर 3 डेसिमल फ्रैक्शन. सो यू हैव टू राइट फर्स्ट 89.9, सेकेंड इज 4.65. सो आपने यहाँ पे एक ज़ीरो खुद से लगाना है और यहाँ पे 04.65. ठीक है, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट आना चाहिए. नंबर थर्ड इज 560 349. यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं 3 4 9 एंड 0 6 5. तो जो नंबर मिसिंग है वहाँ पे आपने ज़ीरो इंसर्ट करना है और इसको सिंपल ऐड कर देना है. ठीक है, so this is exercise number 12 which is about addition of decimal fraction. Next is exercise number 13 which is work out these subtractions. This is subtraction और इसमें भी आपने सिंपल डेसिमल पॉइंट को डेसिमल पॉइंट के नीचे आपने इसको प्रॉपर अरेंज कर लेना है एंड सिंपल सब्ट्रैक्शन करनी है जैसे होल नंबर्स की करते हैं. सो फर्स्ट इज 12.34 and this number is 9.56. So we will write 909.56
and then subtract. 4 is smaller than 6, so we will borrow one number here from here, so it becomes 14, and this is 2. 14 minus 6 is equal to 8. This is 2. Again we will borrow one number, it becomes 12, and this it becomes 1. 12 minus 5 is equal to 7. Then decimal point, so this is 11. यहाँ पे ये नंबर 11 बन गया, हम 1 ले लेंगे, यहाँ से ये 0 बन जाएगा. 11 minus 9 is equal to 2. So answer is 2.78. Next is 987.7. Write decimal point under decimal point. This is 78. Write 0 here. And this is 67. Write 0 here. And simple subtraction. This is 10. ये 0 है, यहाँ पे हम 1 number borrow करेंगे. It becomes 10. 10 minus and it becomes 6. 10 minus 8 is equal to 2. 6 minus 7 is not possible, so we will borrow one number from here. It becomes 16 and it becomes 6. 16 minus 7 is equal to 9. Then decimal point. Then again we will borrow one number here from here. 16 minus 7 is equal to 9. 7 minus 6 is equal to 1. And then 9. So answer is 919.92. So these are also same. इसमें भी आपने सिंपल अरेंजमेंट करनी है. मैं आपको अरेंजमेंट बता देती हूँ, आपने सब्ट्रैक्शन खुद से करनी है. फर्स्ट इज 23.456. राइट डेसिमल पॉइंट हेयर 6, 6, 7, 8. Then subtraction. This is 90. 90 is a whole number. So we will put decimal point here and 2 zeros इसके इक्वल करने के लिए. Write 45 before decimal point and 78. और आपने सिंपल सब्ट्रैक्शन कर देनी है. नंबर 5 is 619.045 and this is decimal point 567. और यहाँ पे है 89, तो आपने एंड पे एक ज़ीरो ऐड कर देना है. नंबर 6 एंड नंबर लास्ट इज 100. 100 इज़ अ होल नंबर, सो यू हैव टू पुट डेसिमल पॉइंट एंड 3 zeros हेयर टू मेक इट इक्वल टू दिस. आपने इसको इस डेसिमल फ्रैक्शन के इक्वल करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे 3 zeros पुट करने. नाउ 23.999 एंड राइट zeros इन फ्रंट ऑफ 2, 3. ठीक है, और सिंपल आपने सब्ट्रैक्शन कर देनी है. So this is exercise number, this was exercise number 13, which is about subtraction. Next is exercise number 14, which is find the missing digits. उन्होंने हमें कुछ नंबर दे दिए हैं और हमने मिसिंग डिजिट्स फाइंड आउट करने हैं. दीज आर ऑल सब्ट्रैक्शन, ये सारे सब्ट्रैक्शन के सम्स हैं. तो हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि इसके नीचे कौन सा आंसर आएगा. सॉरी, आंसर इज ऑल्सो गिवन. उन्होंने हमें आंसर भी गिवन किया हुआ है, तो हमने इसको लिख लेना है. आंसर इज 2.79. 2.79. अब हमने यहाँ पे कोई ऐसा डिजिट लिखना है कि ये आंसर यहाँ पे 9 आ जाए. सो दिस इज 3. 3 में से हम क्या माइनस करें कि 9 आ जाए. 3 में से तो माइनस करेंगे, 9 तो नहीं आ सकता. 3 इज अ स्मॉलर नंबर, सो वी विल बोरो वन नंबर फ्रॉम हियर. इट बिकम्स 13 एंड दिस 6 बिकम्स 5. नाउ सब्ट्रैक्ट सम नंबर फ्रॉम 13 के आंसर आपका 9 आ जाए. 13 minus 4 is equal to 9. So answer is in this blank is 4. 5 minus 8 is not possible and answer भी उन्होंने दिया है. So we will borrow one number from here and it becomes 15. 15 minus 8 is equal to 7 and it becomes 4. 4 में से कौन सा नंबर माइनस करें कि 2 आए. 4 minus 2 is equal to 2. So answer is 2.79. Number second is 2.485. 485. ओके, नंबर सेकंड का उन्होंने हमें आंसर दे दिया 2.485. 9 minus 4 is equal to 5. 6 minus 8 is not possible. तो यहाँ पे कोई नंबर होगा जिससे हमने एक नंबर यहाँ बोरो किया है और आंसर 8 आया है. तो हमें ये नंबर नहीं पता यहाँ पे कौन सा नंबर है. फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक नंबर ले लिया है, यहाँ से ये 16 बन गया. ठीक है, 16 minus 8 is equal to 8. अब हमने देखना है कि यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर क्या आए, 4 आए. सो दिस नंबर बिकम आई थिंक सो 12. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 13 ले लेंगे. 3 लिखेंगे क्योंकि हमने एक नंबर यहाँ से नेक्स्ट नंबर को दे दिया है. तो ये क्या हो गया है, 2. तो यहाँ पे हम दोबारा एक नंबर लेंगे
12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5, सॉरी यहाँ पे हम 12 ले लेंगे, सॉरी यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। तो एक नंबर हमने नेक्स्ट नंबर को दे दिया है, सो इट बिकम्स 1। अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, 1 नंबर दोबारा कैरी लेंगे, सो इट बिकम्स 11 एंड दिस नंबर बिकम 3। सो 11 माइनस 7 इज इक्वल टू 4 एंड 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो आंसर इज 2। यहाँ पे क्या आंसर आएगा, 2। नंबर थर्ड इज आंसर इज 54.564। so what number is subtracted from, आप 4 को किस नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 है, तो सिंपल सी बात है, हम 4 को 8 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4, 3 माइनस 7 इज नॉट पॉसिबल, सो वी विल बोरो 1 नंबर फ्रॉम हियर, इट बिकम्स 13, 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6, 5 माइनस 0 इज इक्वल टू 5, देन 5। यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर होना चाहिए कि यहाँ पे हम माइनस करें तो 4 आ जाए, सो 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4, सो आंसर इज 79.638 and 25.074. Number fourth is 35.193। इसका आंसर उन्होंने हमें बुक में उन्होंने हमें इसके आंसर दे दिए हैं, तो हमने इसको करना है। सो 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, 3 माइनस 4 इज नॉट पॉसिबल, सो वी विल बोरो 1 नंबर फ्रॉम हियर, इट बिकम्स 7, दिस बिकम्स 10 and it becomes 13 and 9. 13 minus 4 is equal to 9, 9 minus 8 1, 7 minus 2 5 and 4 minus 1 is equal to 3. So इस वाली ब्लैंक में 2 आ जाएगा और इस वाली ब्लैंक में 1 आ जाएगा। So this is exercise number 14, unit number 5. Next is exercise number 15, which are word problems. ये mixed word problem है, इसमें addition और subtraction दोनों हैं। First is add the following. So इसमें आपने simple decimal points को, फ्रैक्शंस को आपने अरेंज कर लेना है। फर्स्ट इज 10.99, सो यू हैव टू पुट 1 0 बिफोर 10 एंड 1 0 आफ्टर 99, ताकि ये तीनों मैच हो जाएं। तो आपने इसको सिंपल अरेंज कर लेना है और फिर इसको आपने ऐड करना है। नंबर सेकंड इज टेक अवे 45.2 फ्रॉम 67। 67 इज अ होल नंबर, आपने 67 में से 45.2 को सब्ट्रैक्ट करना है। सो राइट इट हेयर 67.0, आपने डेसिमल पॉइंट खुद से लगाना है और 0, ताकि ये इसमें से 45.2 को माइनस कर लें। अब आपने इसको सिंपल सब्ट्रैक्ट करना है। सो दिस इज, वी विल बोरो 1 नंबर फ्रॉम हियर, 10 माइनस 2 8, 6 माइनस 5 1, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, सो आंसर इज 21.8. नंबर थर्ड इज What should be added to 23.456 to get 50? आपने 23.456 में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें कि हमारे पास आंसर 50 आ जाए। तो सिंपल, आपने पहले 50 में से इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, जो आंसर आएगा उसको आपने इसके अंदर प्लस कर देना है, तो हमारे पास आंसर 50 आ जाएगा। तो वो आंसर होगा हमारा। दिस इज सोल्यूशन इज, फर्स्ट यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 23.456 फ्रॉम 50, आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, आंसर इज 26.544। आपने 50 को कैसे अरेंज करना है, 50 देन डेसिमल पॉइंट, ट्रिपल जीरोस, देन 23.456। वाई, बिकॉज देयर आर 3 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट, तो आपने भी 50 के बाद 3 जीरोस लगाने हैं। सब्ट्रैक्शन करके आंसर आ जाएगा 26.544। अब अगर आप 23.456 में 26.544 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 50। सो आंसर इज, इफ 26.544 is added to 23.456, we can get number 50. Number fourth is Taslim has rupees 12.63. He buys a cap for rupees 9.75. How much money does he have left? Total money Taslim has is equal to rupees 12.63. उसने एक कैप खरीदी है which is equal to rupees 9.75. So you have to find out how much money is left with him. आपने देखना है कि उसके पास कितने पैसे बच गए हैं, तो आपने सिंपल सब्ट्रैक्शन करनी है। Taslim has rupees is equal to 12.63. He buys a cap for rupees 9.75. How much money is left? Money left is equal to total money minus money used. So total money is 12.63 and money used is equal to 9.75. So simple, आपने सब्ट्रैक्शन करनी है, डेसिमल पॉइंट्स को आपने अरेंज कर लेना है। 12.63 0 9.75, आपने स्टार्ट में खुद से 0 लगाना है। वाई, बिकॉज देयर आर 2 डिजिट्स बिफोर डेसिमल पॉइंट।
So money left is 2.88 rupees. Then comes number 5th. Part number 5th is Abdul bought 2 gift boxes for rupees 34.67 and 78.90. How much did he spend on the gifts? अब्दुल ने क्या किया है, 2 गिफ्ट बॉक्सेस खरीदे हैं. फर्स्ट की प्राइस कितनी है 3.67 एंड सेकंड की 7.90. सो यू हैव टू फाइंड आउट टोटल मनी ही स्पेंड. सो सिंपल यू हैव टू ऐड दीज 2 नंबर. आपने जो 2 नंबर है इन दोनों को ऐड कर देना है. So answer is price of first box is equal to rupees 34.67. Price of second box is equal to 78.79. So total price is equal to first box plus second box. So 34.67 plus 78.90. Simple आपने इनको अरेंज करना है. Answer is 113.57 rupees. Total price is equal to rupees 113.57. Next comes number 6th, which is Amir wanted to cook biryani. He took 1.2 kg rice, 0.56 kg chicken, 0.34 kg spices and 0.009 kg oil. What was the total weight of the biryani that he cooked? उन्होंने हमें इंग्रेडिएंट्स की जो है वो सेपरेट उन्होंने हमें वेट बता दिया. आपने सिंपल इसको ऐड करना है और टोटल वेट ऑफ बिरयानी बता देना है. सो वेट ऑफ राइस इज 1.200 kg, चिकन इज 0.560 kg, स्पाइसेस इज 0.034 kg एंड ऑयल इज 0.009 kg. जहाँ पे नंबर्स फॉर एग्जांपल राइस में उन्होंने हमें 1.2 kg दिया है तो हमने यहाँ पे एंड पे 2 zeros खुद लगाने हैं ताकि हम इसको ऐड कर सकें. सो आंसर इज 1.803. टोटल वेट ऑफ बिरयानी इज 1.803 kg. Number 7th is a tank contains 45 liters of water. There is a leak and 1.342 liters of water are lost. How much water is left in the tank? एक टैंक है और उसकी कैपेसिटी कितनी है 45 लीटर और उसमें एक लीक हुआ हुआ है, सुराख हुआ हुआ है जिसकी वजह से 1.342 लीटर्स ऑफ वाटर जो है वो ज़ाया हो गया, लॉस्ट हो गया. तो उन्होंने कहा है कि टैंक में कितना पानी बच गया है. सो सिंपल यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दीज 2 नंबर्स. आपने इनको सब्ट्रैक्ट करना है. A tank contains water is equal to 45 liter. Amount of water leaked is equal to 1.342. Water which is left is equal to आपने क्या करना है टोटल वाटर में से जितना पानी लीक हो चुका है उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है. सो आंसर इज 43.658 लीटर्स. लास्ट एंड नंबर 8th इज द लेंथ ऑफ अ फुटपाथ इज 2.828 किलोमीटर एंड एक्सटेंशन ऑफ 0.45 किलोमीटर इज रिक्वायर्ड. फाइंड द न्यू लेंथ ऑफ द फुटपाथ. एक फुटपाथ है और उसकी लेंथ कितनी है 2.82 किलोमीटर और उन्होंने कहा है कि हमें एक एक्स्ट्रा उसमें ऐड करनी है, एक्सटेंशन ऐड करनी है फुटपाथ में. तो हमें न्यू फुटपाथ की जो न्यू लेंथ है वो बताएं आप. सो सिंपल जो न्यू लेंथ होगी उसमें आपने ऐड करना है. द लेंथ ऑफ फुटपाथ इज 2.828 किलोमीटर. लेंथ ऑफ एक्सटेंशन इज इक्वल टू 0.45 किलोमीटर. सो न्यू लेंथ इज इक्वल टू 2.828 प्लस 0.450 विच इज इक्वल टू 3.278. So the new length of footpath is 3.278 kilometers. So these are exercises. Exercise number 12th, 13th, 14th and 15th of unit number 5, grade 4. So you can solve these exercises easily by watching this video. Jazakallah.